یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو مافیا ہے، یہ پولیٹیشنز نہیں ہیں. یہ کتنی حقارت سے پبلک کو دیکھتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں عوام بھیڑ بکری ہیں. یہ عوام کو یا آپ کو انسان نہیں سمجھتے کہ جب واضح طور پہ آرٹیکل 63A میں لکھا ہوا ہے، سپریم کورٹ کی رولنگ ہے کہ پارلیمنٹری پارٹی کا ہیڈ وہ پارلیمنٹری پارٹی کا جب فیصلہ کرتی ہے کہ جس کے ساتھ بھی جانا ہے، وہ پارٹی ادھر جا کے ووٹ دیتی ہے. جو باہر بیٹھا ہوا ہے، جو پارٹی کا ہیڈ ہے، اس کا اس میں نام نہیں لکھا ہوا. کیونکہ میرے سے یہ ہوا ہے، میں نے جب ہم نے ہمارے لوگوں کو جب اپنے 25 لوٹوں کو ہٹانا تھا تو تب بھی پارلیمنٹری ہیڈ نے لیٹر لکھا. جب میں نے پہلے لکھا وہ رد کر دیا گیا تھا. تو شجاعت کا تو لیٹر ہی نہیں ویلڈ. اس لیٹر کے اوپر 10 کیو لیگ کے ممبرز نے پارلیمنٹری پارٹی کے ہیڈ پہ ووٹ ڈال دیے جا کے. ہم جیت گئے. اب یہ کوئی جمہوریت میں اس طرح کا مذاق ہوتا ہے؟ کیا یہ ہے جمہوریت؟ یہ جمہوریت نہیں ہے. ان کے اربوں روپیہ ایٹ سٹیک ہے. یہ لوگ اس ملک کو لوٹنے آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام ایکسپرٹس میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی. ناظرین، پینل کا تعارف کرا دیتی ہوں. تحریک انصاف سے مسرت جمشید چیمہ صاحبہ ہمیں جوائن کریں گی. مسلم لیگ نون سے نہال ہاشمی صاحب آج کے ہمارے پینل کا حصہ ہیں. بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. جسٹس ریٹائر شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. سلمان عابد صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گی. ناظرین، وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب پر پھر تنازع کھڑا ہو گیا ہے. قانونی جنگ پھر سے شروع ہو گئی ہے. معاملہ دوبارہ سپریم کورٹ میں پہنچ گیا ہے. آج ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ سے متعلق درخواست پر سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں ایک اہم سماعت ہوئی. سماعت کے دوران چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ ہمارے فیصلے کے خلاف ہے اور بادی النظر میں حمزہ شہباز کا وزارت اعلیٰ کا عہدہ گہرے خطرے میں ہے. تاہم عدالت نے حمزہ شہباز کو بطور ٹرسٹی وزیر اعلیٰ کام کرنے کا حکم دے دیا ہے اور ڈپٹی اسپیکر سے تمام ریکارڈ تحریری طور پر پیر کو طلب کر لیا ہے. دوسری طرف حکمران اتحاد نے سپریم کورٹ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے الیکشن کے معاملے پر فل کورٹ بینچ بنایا جائے. اسی مناسبت سے ہم ڈیبیٹ کا آغاز کریں گے. میں چاہوں گی کہ پہلے ہم تھوڑا سا اس کے قانونی پہلو پر بات کر لیں. شائق عثمانی صاحب، میں آپ سے آغاز کروں گی. اب یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے معاملے کو دیکھتے ہوئے آپ کے خیال میں اب جو ڈپٹی اسپیکر کی ووٹ کاؤنٹنگ سے متعلق رولنگ ہے، سب سے پہلے تو میں یہی جاننا چاہوں گی کہ آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ ہے یہ تو صحیح نہیں تھی اور میرے خیال میں جلد بازی میں انہوں نے کیا. کیوں کیا یہ مجھے معلوم نہیں، کیونکہ اگر آرٹیکل 63A کو پڑھا جائے تو اس میں صاف 2 حصے ہیں اس کے. پہلا حصہ وہ ہے جہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے اپنی پارلیمنٹری پارٹی کے جو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے، فیصلہ کیا ہے، اس کے خلاف ووٹنگ کرتا ہے تو وہ ایک قسم کا قصوروار ہوتا ہے. اور اس کے بعد دوسرے حصے میں یہ ہے کہ اس صورت میں پارٹی کا جو ہیڈ ہے، پارٹی ہیڈ، وہ پھر اس کے خلاف ڈسپلنری ایکشن لے سکتا ہے. یہ تو صاف کلیئر چیز ہے. اور یہ جو انہوں نے آج جو ظاہر ہوا، جو ان کے وکیل صاحب جو تھے، انہوں نے جو سپریم کورٹ میں کہا کہ انہوں نے یہ فیصلہ جو ڈپٹی اسپیکر نے کیا تھا، یہ جو الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ کیا تھا اس کے بیسس پہ کیا تھا. سپریم کورٹ کا تو اس میں کوئی فیصلہ نہیں تھا. حالانکہ انہوں نے جو اناؤنس کیا تھا وہ کہا تھا کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. تو میرے خیال میں انہوں نے جلد بازی کیا تھا. اگر ان کو کچھ کرنا بھی تھا تو ان کو چاہیے یہ تھا کہ وہ لیٹر جو تھا ان کے سامنے چودھری شجاعت صاحب کا، اس میں وہ کہتے ہیں میرے پاس یہ لیٹر آیا ہے، میں اس کو کنسیڈر کر رہا ہوں اور اس کو میں آپ کو کاپی دے دیتا ہوں PNLC والوں کو، اور اس کو میں فیصلہ کل کروں گا. اس کو کر کے وہ راک کر سکتے سیشن کو. لیکن انہوں نے جلد بازی میں کیا. اب میرے خیال میں ان کو مشکلات شروع ہو گئی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، ڈپٹی اسپیکر اپنی اس رولنگ کا دفاع کر سکیں گے، جسٹیفائی کر سکیں گے؟ جس طرح آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ اس لیٹر کی کاپیز دے سکتے تھے، سپریم کورٹ کے فیصلے کو انہوں نے باقاعدہ کوٹ کیا. اب ان کے پاس کیا پوائنٹس ہیں جس سے وہ جسٹیفائی کر سکیں کہ انہوں نے اس بنیاد پر یہ فیصلہ کیا اور وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی جو انہوں نے کاؤنٹ دیا کہ وہ اب پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہوں گے؟ اب دیکھیے، ان کے پاس صرف ایک ہی چارہ ہے. ان کے وکیل صاحب جو ہیں عرفان قادری صاحب کے پاس، وہ یہ کہ وہ یہ آرگومنٹ کریں کہ پارلیمنٹری پارٹی کا جو لیڈر ہوتا ہے وہ تو ٹیمپرری ہوتا ہے. تو کسی ایک جو پارلیمنٹری پارٹی ہے اس کا وہ لیڈر بن جاتا ہے. پرماننٹ تو پارٹی کا ہیڈ ہوتا ہے.
जब पार्टी का हेड परमानेंट होता है तो उसका जो ऑर्डर है या उसका जो लेटर है वो प्रिवेल करता है किसी पार्लियामेंट्री लीडर के ऑर्डर के ऊपर या उसके इंस्ट्रक्शन के ऊपर. इस पे बेसिस पर वो एकेडमिक डिस्कशन वो ला सकते हैं, एकेडमिक बेसिस पर आर्गूमेंट कर सकते हैं. लीगल बेसिस पर तो उनके सामने कोई चारा नहीं. जी, शाइख उस्मानी साहब, आप जानते हैं हमजा शहबाज को पीर तक बतौर ट्रस्टी वज़ीर आला काम करने का हुक्म दिया सुप्रीम कोर्ट ने. मुख्तलिफ राय आ रही हैं. सीनियर कानूनदान बैरिस्टर एतजाज़ एहसन ने यह मौक़िफ़ दिया है कि अबूरी वज़ीर आला लगाना अदालत का इख्तियार नहीं है. आप एतजाज़ एहसन के इस मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक हैं? देखिए, जहाँ तक कि उनके टेम्पररी या केयर टेकर टाइप का या वो के तरीके से वो करेंगे, ये तो एक आइन में ही मौजूद है. अगर किसी वजह से कोई चीफ मिनिस्टर जो है वो काम नहीं कर सकता तो फिर उसको कंटिन्यू करने के लिए कहा जा सकता है. और चूंकि पहले भी उन्होंने इसी बेसिस पर उनको बनाया था टेम्पररी चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने उसको रिवर्स वही चीज़ वापस कर दी जो कि पहले था, क्योंकि नेचुरली वो हटाना किसी और को बनाना तो मुश्किल था और जब एक दिन की बात थी सिर्फ, तो इस वजह से मेरे ख्याल में इसमें तो कोई नुक्स नहीं से. और शाइख उस्मानी साहब, आपके ख्याल में फुल कोर्ट बेंच बनना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का, जो हुकूमती इत्तेहाद का मुतालबा है? देखिए, खास सिर्फ इस पिटिशन के ऊपर तो नहीं की ज़रूरत है और मेरे ख्याल में वो मानेंगे नहीं है, सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेगी. लेकिन अगर किसी तरीके से वो आर्ग्यू करें और ये कहें कि चूंकि इसमें और चीज़ें भी इन्वॉल्व हैं, मसलन ये कि जो एक 63A की जो रेफरेंस पेश किया गया था उसमें जो फैसला था जिसमें कि ये कहा गया था कि उनके वोट काउंट नहीं होंगे, उस पर रिव्यू फाइल की हुई है इन लोगों ने, अगर उसको भी इसके साथ ज्वाइन कर दिया जाए और एक दो और पिटिशन है ज्वाइन करके सबको साथ सुना जाए ताकि ये मामला हमेशा के लिए सॉल्व हो जाए, तो उस सूरत में मेरे ख्याल में शायद वो कामयाब हो जाएं कि एक फुल बेंच बना दी जाए. से शाइख उस्मानी साहब, एक लास्ट कमेंट में जा रही थी, जैसे अब सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि बादियो नज़र में हमजा शहबाज की जो वज़ारत आला का ओहदा है वो गहरे ख़तरे में है. आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या पीर का जो दिन है वो हमजा शहबाज की वज़ारत आला का आखिरी दिन हो सकता है? जी, मेरे ख्याल में तो यही होगा, क्योंकि अब ये होगा कि पीर के दिन जो हो, जब अगर ये इरफान कादिर साहब कोई ऐसी आर्गूमेंट लेके आए जिस तरह मैंने कहा था, कोई एकेडमिक डिस्कशन शुरू कर दें या सारी पिटिशन को ज्वाइन करने की बात करें और वो कामयाब हो जाए. अगर वो कामयाब नहीं होती तो ये यकीनन सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे में पहुंचेगी कि डिप्टी स्पीकर का जो ऑर्डर था, वो जो रूलिंग थी वो सही नहीं थी. वही हशर हुआ होगा जो कि इनकी PTI की 16 अप्रैल में जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ था कि वो जो गैर कानूनी था, और उस सूरत में वो रिवर्स हो जाएगा. वो एक दिन और मुकर्रर कर देंगे और उस दिन कहेंगे कि दोबारा कॉल की जाए असेंबली और इलेक्ट किया जाए चीफ मिनिस्टर को. जी, कानूनी पहलुओं पर आपसे बात कर रहे थे जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब. आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया. ब्रिगेडियर साहब, मैं ब्रेक पे जाने से पहले आपसे एक कमेंट लेना चाह रही थी. अब ये एक तनाज़े वज़ीर आला पंजाब का एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया. शाइख उस्मानी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी. अब पॉलिटिकली ये क्या नतीजा निकलेगा आपके ख्याल में? देखिए, पॉलिटिकली निकलेगा, लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कितनी ज़्यादा होगी. पिछले 2-3 महीने से सबसे बड़ा पंजाब का सूबा, सबसे बड़ी वहाँ पर पॉपुलेशन, और दे आर इन डॉल्ड्रम, और वहाँ पर अभी तक कोई सही कंट्रोल नहीं है. मुल्क का कितना नुकसान हो रहा है. आई थिंक ये बड़ा अनफेयर था डिप्टी स्पीकर ने किया. कोर्ट में केस है, लेकिन डेफिनेटली अगर प्रेसिडेंट हेड ऑफ द पार्टी ने भी लेटर दिया था तो वो फिर पार्लियामेंट लीडर को जाना चाहिए था लेटर कि जी आपने ये नहीं करना. उनको इन्फॉर्म ही नहीं किया. और सेकंड बात ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के MPAs पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे तो क्या वो ट्रम्प को वोट देंगे या वो इंडियन किसी को वोट देंगे? दे आर बाउंड टू गिव वोट एटलीस्ट टू देयर ओन पार्टी हेड जो खड़ा हुआ इलेक्शन के अंदर. तो इट लुक वेरी फनी. मेरे ख्याल में इसको आगे इम्प्लीकेशन है क्या किया गया वो तो नजर आ रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की बातों से पता चल रहा था क्या डिसीजन होगा. लेट्स होप इट एंड्स वेल और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पंजाब में आती है, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. सही है जी. हमारे साथ मौजूद हैं नाज़रीन. हम अब कुछ आगे बढ़ेंगे, मुल्क का सोचेंगे, मुल्क के लिए बात करेंगे कि मुज़ाकरात की मेज़ पर अगर ये तमाम सियासी जमातें आती हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स इसमें अपना हिस्सा डालते हैं, तमाम सियासी जमातें जो अपने इख्तलाफात हैं वो भुलाकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात एक दूसरे के साथ मिलकर हल करते हैं, मुल्क का सोचते हैं, तो ज़ाहिर है मुल्क आगे बढ़ेगा. और इस वक्त जो मुल्क एक नाजुक सूरत हाल से दो चार है, हम इस पर भी बात करेंगे, अपने मेहमानों की राय भी लेंगे. क्या PMLN PTI वो मुज़ाकरात की मेज़
पर आने के लिए तैयार हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करें कि इस वक्त गवर्नमेंट और अपोजिशन आमने सामने है, सियासी महाज़ अरूज पर है, हर गुजरते दिन के साथ सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ता जा रहा है। निहाल हाशमी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। अब ये जो सारी सूरत हाल है, आपके ख्याल में क्या अब वक्त आ नहीं गया कि तमाम सियासी जमातों को मुल्क की खातिर, क्योंकि मुआशी जो सूरत हाल है वो आपके सामने है, अगर सियासी अदम इस्तेहकाम इसी तरह से बढ़ता रहा तो सूरत हाल मज़ीद गंभीर होती जाएगी। आपको नहीं लगता कि अब वक्त आ गया है मुल्क की खातिर तमाम सियासी जमातों को आपको एफर्ट करनी चाहिए, मिलकर बैठना चाहिए, मुज़ाकरात की तरफ बढ़ना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई भी रियासत हो, अगर उस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं है तो वो फेल स्टेट कहलाती है। और सियासत करना सियासतदान और पार्लियामेंटेरियन का काम है। मगर बदकिस्मती से अब पाकिस्तान में अदालतों में सियासत हो रहा है। अगर चलो एक लिहाज से अच्छा है, अगर वजीर आला वजीर आजम अदालत नहीं तय कर रहा है तो फिर वोटिंग के प्रोसेस को स्टॉप कर देना, फिर पार्लियामेंट को ख़त्म किया जाए। मैं समझता हूं कि हमारी अदालतें पहली बहुत बोझ उठा चुकी है, जस्टिस मुनीर से लेके आज तक। और हमारे यहाँ, मैं खुद वकील हूँ, मैं ये बताता, मैं समझता हूँ कि कानून एक होना चाहिए। मुझे ताज्जुब होता है कि आज सैटरडे के दिन हाई कोर्ट तो नहीं खुलता हमारे यहाँ, हम जाके अगर जमा कराएं कोई एप्लीकेशन तो वो लगता है। तो निहाल हाशमी साहब, ये मौका सियासतदानों ने दिया है। मेरा सवाल भी यही है कि क्या आपको नहीं लगता कि बतौर सियासतदान आपको आगे बढ़ना चाहिए, इदारों को अपने रोल में काम करना चाहिए? क्या आप ये बताएं, सियासतदानों ने कहा था कि नवाज शरीफ के लिए आप वो बेंच बना दें, निगरां बेंच, क्या सियासतदानों ने कहा था? जी, सियासी अदम इस्तेहकाम जब बढ़ता है तो मौका मिलता है ना, फिर आप दिया जाए। नहीं, देखिए जी, हम किसी के मैदान में जाके नहीं खेलते। अगर आप सियासतदानों के मैदान में आके खेलेंगे तो ये नुकसान सियासत का नहीं होता है। सियासतदान आते जाते रहते हैं, रियासत ने हमेशा रहना है, पाकिस्तान ने हमेशा रहना है। मगर इतना कमजोर पाकिस्तान क्यों बना रहे हैं? जिसका जो काम है उसे वो करने दें, ये मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट को फैसला करने दें। दुनिया में बहुत सारे मुल्कों में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। श्रीलंका में भी पिछले दिन हुआ, तो क्या ये हुआ कि श्रीलंका के कोई और पार्लियामेंट से हट के कोई और आकर के वहां का प्रेसिडेंट चुन रहा होता है, या सीएम चुन रहा होता है, या पीएम चुन रहा होता? नहीं, हर कोई आइन। अब फिर अगर डबल कानून बन जाता है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन के आगे जाकर के अगर कोई जजमेंट और रूलिंग आ जाए, जो जिसका नजर हुआ परसों, आप 6 को 9 बना दें और 9 को 6 बना दें अपने उसमें, ये नहीं हो सकता कि आप घुमा दें एक बार 6 को 9 और 9 को 6 कर दें। तो देखिए, ये सिर्फ मुस्लिम लीग या उसके इत्तेहादियों की जिम्मेदारी नहीं है, ये हर उस पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है जो पाकिस्तान में रहता है, बसता है। सिर्फ नारे लगाने से पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की हम खिदमत नहीं करते, उसके लिए हमें कुर्बानियां भी देनी पड़ती। शहबाज शरीफ साहब ने तो बहुत पहले कह दिया था, पहली सेशन में 2018 में, कि जनाब आए आके बैठे पाकिस्तान में मिशाके मैशियत की बात करें। 12 हमने बात की। देखिए, वो उनकी बहुत अच्छी बात थी और वो कोर्ट भी की जाती है। बने थे तो उन्होंने 12 हम पे बहुत ज्यादा विक्टिमाइज हुआ। मियां नवाज शरीफ के पूरा खानदान जेल में रहा, मरियम नवाज जेल में रही, हमजा जेल में रहा, शहबाज जेल में रहे, एहसन इकबाल, सलमान, ख्वाजा शाद रफीक, एहसन इकबाल, कौन था जो जेल में नहीं था? मगर हम फिर भी कहते थे कि हम रियासत के खातिर सारे जबर को बर्दाश्त करेंगे। मगर ये जब हमारे हाथ में आप बॉल नहीं देते, आप ये बताएं ना मुझे कि डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली को बुलाया गया था क्या? नहीं बुलाया गया था ना। क्या चेयरमैन सेनेट को बुलाया गया था क्या? नहीं बुलाया गया था। उस वक्त क्या फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हुई थी? तो आप जिस बॉल से खेलते हैं, हम आज उसी बॉल से तो खेल रहे हैं। से लेकिन निहाल हाशमी साहब, मेरा जो सवाल था, हम यही चाहते हैं, देखिए मुल्क इस वक्त जिस दौराए पर है, ये मिफ्ताह इस्माइल साहब भी हमें बताते हैं कि दिवालिया होने के करीब है। आप अवाम का सोचें, आम आदमी जो आपको वोट देता है, आप उसके वोट से पार्लियामेंट में जाकर बैठते हैं, उस पर क्या इफेक्ट हो रहा है? ये आपस की जो लड़ाई है, मेरा पॉइंट भी यही है जो आप बात कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं से पहल होनी चाहिए? आपको पार्लियामेंट में अपने मसाइल को हल करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया। आपको पता है कि जब 18वीं तरमीम हुई तो सारी सियासी जमातें आके बैठी, और आपको याद होगा जब आसिफ जरदारी साहब सबकदोश हो रहे थे एज ए सदर,
تو پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے ان کو بلا کر کے لنچ دیا تھا. آپ کو پتا ہے کہ روایت قائم کی تھی ہمیشہ نواز شریف صاحب نے قائم, اور پھر سب سے بڑھ کے انہوں نے کیا کیا کہ پاکستان کی معیشت کو استحکام دیا, سی پیک لے کے آئے. آج کہاں پہ ہے سی پیک کھڑا ہوا, آپ پوچھیں آج وہ $60 ارب کہاں چلا گیا. وہ اس ملک میں امن لے کے آئے, لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کیا, انہوں نے میٹرو بس انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کیا, اور پھر آپ نے اقامہ اور پاناما کے چکر میں نواز شریف کو فارغ کر دیا. جو آدمی کو انٹرنیشنلی ریکوگنائز کرتی ہے, دنیا اس سے بات کرتی ہے, معیشت دان اس کو مانتے ہیں کہ یہ پاکستان کی اکانومی کو ریسٹور کر رہا تھا, اس اسحاق ڈار کو آپ نے باہر کر دیا جو پاکستان کے خزانے کو بھر رہا تھا. اس اسحاق ڈار کے اوپر آپ نے جھوٹے کیس کر دیے, اس کے وارنٹ نکال دیے. جی جی نہال ہاشمی صاحب اسی سے آگے بڑھیں. چلیں بریگیڈیئر صاحب کا میں پوائنٹ آف ویو لے لوں. ساتھ کیا کرتے ہیں؟ جی 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 بریگیڈیئر صاحب یہ آپ نہال ہاشمی صاحب کی گفتگو بھی سن رہے ہیں. سوال یہی ہے کہ یہ جو ساری باتیں ہیں ہر کوئی اپنی جگہ پر درست بات کر رہا ہوگا. ظاہر ہے ہمارے ہاں تو یہ سسٹم ہے, جو ہارتا ہے وہ کہتا ہے دھاندلی ہے, جو جیت جاتا ہے وہ کہتا ہے نہیں جی بڑے شفاف ہوئے ہیں. لیکن اب تو خیر آلدو صورتحال اس سے بھی مختلف نظر آتی ہے. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں اس سے آگے ایک سٹیپ لینا چاہیے؟ یہ تمام معاملات مل کر بیٹھ کر تمام سیاسی جماعتوں کو, ملک کے تمام سٹیک ہولڈر جس میں آپ بھی شامل ہیں میں بھی شامل ہوں, ایک میز پر بیٹھنا چاہیے, ملک کا سوچنا چاہیے. دعا دیکھیں پاکستان از ان ویری ڈیفیکلٹ پولیٹیکل اور اکنامک سچویشن میں, اور یہ ڈے بائی ڈے وی آر ہیڈنگ ٹوورڈ ڈیفیکلٹ ٹائم. سو نمبر 1 پہلا تو یہ ہے کہ حکومت کے وقت کے پاس ایک انیشیٹو ہوتا ہے اور وہ سچویشن کو حالات کو بہتر بھی کر سکتی ہے. آئی اسٹل فیل کہ پرائم منسٹر پاکستان کو ایک ملک کے انٹرسٹ میں, اکنامک انٹرسٹ میں, پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے ایک نیشنل ڈالر کے لیے کال دینی چاہیے تھی, اور ابھی بھی ٹائم ہے. اور اس میں بلائیں پی ٹی آئی کو بھی اور کافلی کو بلائیں کہ آئیں گی, وی وانٹ ٹو بی ویری اوپن. کیا پرابلم ہے, الیکشن کرانا ہے یا اور کیا پرابلم ہے, لیٹس ڈسکس ایز اے تمام پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ جائیں اینڈ فائنڈ اے پلازیبل سولوشن جو کنسنسس کے ساتھ ہو. نمبر 1 یہ جو کہ مجھے ابھی نہیں لگتا کہ جس سٹیج کے اوپر ہے, نہ گورنمنٹ چاہ رہی ہے, نہ گورنمنٹ نے کوشش کی, اور نہ پی ٹی اے بھی اس وقت ہے. تو سیکنڈ آپشن یہ ہے کہ کیا ہم پاکستان کو اس کو دن بہ دن جو ہے وہ اکنامک ڈیفیکلٹی میں, اکنامک ڈیزاسٹرز میں, پولیٹیکل چلی میں جانے دیں گے, اور ایک سٹیج ایسی آ جائے کہ پھر خدا نہ خواستہ چیزیں ہاتھ سے نکل جائیں, یا اس سے پہلے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے. آئی تھنک اس کے لیے 2-3 اور دیکھیں, یاد رکھیں پاکستان ہے تو آئین بھی ہے, قانون بھی ہے, پی ایم ایل این بھی ہے, پیپلز پارٹی بھی ہے, پی ٹی آئی بھی ہے, اور دیگر جماعتیں بھی. سو اس کے لیے کم از کم میں اسٹرانگلی فیل کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان یا چیف جسٹس آف پاکستان اور دے شوڈ مشاورت کریں پاکستان کے وسیع تر مفاد میں, اور ان کو پھر یہ پارٹی تمام پولیٹیکل پارٹی کو بٹھائیں اور ان کو کہیں آپ فیصلہ کریں کیا چاہتے ہیں, کریں ڈیسائیڈ. حالی الیکشن کرنے ہیں, کیا کرنا ہے, کیسے حالات ٹھیک ہوں گے, آپ بتائیے, ایک کریں. میں بھی دیر ڈیسائیڈ کہ اکتوبر میں الیکشن کریں گے. ایک منٹ میں اس پہ میں نہال صاحب میں جسٹ گیو یو چانس, آپ آرام سے بولیے گا. اس کے یہ اگر یہ نہیں کرتے ہیں تو اس سے ملک میں ہم دن بہ دن بہت مشکل حالات میں جا رہے ہیں. اور میں تو یہاں تک کہوں گا کہ آنیسٹلی میری اگر ذاتی رائے لیں تو میں تو کہوں گا 6 مہینے کے لیے الیکشن کا ٹائم ہو کہ کوئی کیئر ٹیکرز آ جائیں, تھوڑا سا اکنامک پولیٹیکل اسٹیبلٹی لائیں, جو کہ عمران خان میرے خیال میں نہیں مانیں گے. شاید میچور پارٹی ہے پی ایم ایل این, شاید وہ مان جائے اور مارچ میں یا اپریل میں الیکشن کرائیں جبکہ حالات نارملائز ہو جائیں, تھنگس کول ڈاؤن ہو جائیں, پولیٹیکل ٹیمپریچر ڈاؤن ہو جائے. وہ ادروائز نہیں مانتے تو ٹھیک ہے, جو 3 مہینے انٹرنٹ ہے وہ کر لیں, لیکن یہ بہت ضروری ہے. اگر یہ نہیں کریں گے, اور سیکنڈ ڈونٹ انوالو اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہم یہ پولیٹیکل ہیں, ابھی وہ نہیں ہے, پلیز کیپ دم اوے. لیٹ دا پریزیڈنٹ اور چیف جسٹس پاکستان ایک انیشیٹو لیں. اور یہ میں کئی دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں, پاکستان کے لیے بہت خطرناک سچویشن آ رہی ہے اگلے 1-2 مہینے. آئی ایم ایف کا رویہ دیکھ لیا, اس کے بعد جس طریقے سے پولیٹیکل ابھی ٹیمپریچر ہائی ہو رہا ہے پنجاب کا, اننیسیسری کچھ چیزیں کی جاتی ہیں. میں پالیٹکس میں نہیں جانا چاہتا. بالکل تو اب اس وقت پنجاب کو پروونس ہے, بڑا پروونس ہے, اس کو 3 مہینے سے تقریباً گورننس نہیں ہے, نہ منسٹر ہیں. کیا پنجاب کا حال ہو رہا ہوگا. سو آئی تھنک یہ بہت ہی ضروری ہے. آئی وش کہ somebody think over it
and decide in the best national बिल्कुल interest. आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात की है। ये बड़ा इस वक्त बहुत ज़रूरी है। ये ना हो कि फिर किसी के भी हाथ में कुछ ना आए। ज़ाहिर है आप जिस मुल्क में सियासत करते हैं उसको तो चलता रहना चाहिए। मैं मुसर्रत साहिबा की तरफ जाना चाह रही थी। निहाल हाशमी साहब, आप क्विकली कमेंट करना चाह रहे हैं या मैं बाद में आपकी तरफ आऊँ? मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा ब्रिगेडियर हरक साहब की कंसर्न को मुल्क के लिए, मगर चीफ जस्टिस या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास आइन और कानून में इसका इख्तियार नहीं है। अगर वो एक तरफ कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को इन्वॉल्व ना करें, तो इसी तरह से हम जुडिशरी को भी और प्रेसिडेंसी को भी इन्वॉल्व नहीं कर सकते। पार्टीज ही हल करेगी। सही। मुसर्रत साहिबा, मैं आपकी तरफ आऊँगी। अब जिस तरह आपने ब्रिगेडियर साहब की गुफ्तगू भी सुनी, वाकई इस वक्त तो बहुत ज़रूरत है। अगर पीएम की कॉल पर नेशनल डायलॉग होता है तो जैसे इमरान खान साहब रजामंदी जाहिर भी कर चुके हैं मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने के लिए, अर्ली इलेक्शन की बात भी हो रही है, आपको लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्लियर स्टांस है कि मुल्क की खातिर मिलकर बैठने में कोई कबाहत नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, हम जो जंग लड़ रहे हैं ना, वो सियासत की जंग नहीं लड़ रहे, हम ऑलरेडी मुल्क के लिए ये सारी फाइट कर रहे हैं। और इस वक्त बड़े अफसोस, बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि ये हमारे मुल्क ने पहले भी जो अक्सरियत थी उसको अक़लियत में बदलने की बड़ी भारी कीमत अदा की है। और अल्लाह ना करे कि जिस तेज़ी से हालात ये बदल रहे हैं, धकेला जा रहा है, बार बार धकेला, कितना सब्र आजमाएंगे आप आवाम का? मतलब 12 करोड़ का सूबा, उन्होंने इतनी रिगिंग, प्री पोल एंड ऑन पोलिंग डे, जिस तरह से जो कुछ हुआ उसके ऊपर हमने बड़े प्रोग्राम्स किए हैं। उसके बाद जो नतीजा आया है, तो कल 186 को आप कैसे, मतलब अक्सरियत को आपने अक़लियत में बदल दिया? ये लेटर है जी, और ये मुझे मौसूल हुआ है जबकि हमें पता था, मैं हर मेंबर के घर पे आया, ये TCS का लेटर है, ठीक है। हमें पता नहीं था कि चौधरी परवेज इलाही साहब हमारे कैंडिडेट है, उसके बावजूद पार्लियामेंट्री लीडर ने, और ये लीडर मियां महमूद रशीद साहब की तरफ से, ये देखें कल क्या कोई लेटर, कोई ये साजिशों से इस मुल्क को खुदारा बख्श दे। बड़ा लूट खसूट भी की है आप लोगों ने। आप जो कुछ है इस मुल्क की वजह से हैं, हम जो कुछ है इस मुल्क की वजह से हैं। इकोनॉमी आखिरी सांसें ले रही है। रोजाना हम भाषण सुनते हैं टीवी चैनल्स पे आके सारे स्टेक होल्डर्स का, और उस तेजी से उस सिचुएशन को मजीद वर्स्ट करने की तरफ हर रोज धकेला जाता है। जो कल हुआ क्या दुनिया की तारीख में कहीं किसी मुल्क में ऐसे होता है? क्या इसकी कोई एक एग्जाम्पल भी है? कहीं से ये कोट कर दें। इसीलिए आला अदलिया को या किसी को भी, कोई जितने भी ओपिनियन, जितने भी मतलब लॉ से रिलेटेड लोग आए हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं, एक आम आदमी जो समझता है, किसी एक ने भी अगर इस चीज को जस्टिफाई कोई कर पाया हो तो आप मुझे बताएं। इतना खिलवाड़ करने के बाद और उसके बाद बड़े अच्छे अच्छे डायलॉग्स बोले जाते हैं, आई जी बैठे, हमने बैठने से इनकार कब किया है? जब इतनी ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो हमें ये भाषण ना दिया जाए कि मार्च में कराएं तो धमाका में कराएं। कुछ नहीं होने लगा। अभी 20 हल्कों में इलेक्शन हुआ है ना। मेरी अर्ज सुन लेना। जी मैं आपकी बात को बढ़ा रही हूं, लेना मेरी अर्ज सुन ले। वो भी एक कंफ्यूजन, अब जाहिर है क्लैरिटी जो है वो मंडे तक ही होगी। मैं आपसे सवाल जो कर रही थी, ये सारी मामलात आपकी अपनी जगह पर दुरुस्त होंगे। मैं उसी तरफ आ रही हूँ, अगर आप मुझे आने देना, मैं उसी तरफ आ रही हूँ। ठीक है जी, कंटिन्यू कीजिए। जी, मैं ये कह रही हूँ कि इस मुल्क की सिर्फ वाहिद एक हल है, जिस तरफ हम चले गए हैं, ये ना इस गरीब आवाम की गलती और कसूर नहीं था जो हम सारे भुगत रहे हैं, जिसकी कॉस्ट तो हमने पे करनी है, कुछ इंडिविजुअल्स ने नहीं जिन्होंने ये खेल रचाया। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एज अर्ली एज पॉसिबल, जब तक इलेक्शन अर्ली कॉल नहीं होंगे, अब सिचुएशन ठीक नहीं हो सकती। इंटरम सेटअप 6 माह में क्या करेगा? वो क्या कर सकता है? 2 महीने के लिए इंटरम सेटअप लाया जाए, सारी जमातें बैठें, सबकी मर्जी से सब उनको बैकिंग करें, अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर मिड में इलेक्शन कराएं, और जो जिसके पास मैंडेट आ जाए वो आके आराम से मजे से करे, गवर्नमेंट करे, और बाकी ऑपोजिशन में बैठना पड़ेगा, मिलकर एक मेज पर बैठना पड़ेगा। हम कह रहे हैं, बता रही हैं, देखें, हम हमारे चेयरमैन, हमारे पहले ये देखें, हम मेज पे तो बैठते हैं, कोई अनाउंसमेंट तो किसी तरफ से आए कि हाँ हम इलेक्शन कराते हैं, बैठ जाएंगे, जिस मेज पे कहेंगे हम जाके बैठ जाएंगे। हमारी अना का मसला नहीं है, इस मुल्क की बका का मसला है। अब ये मुल्क की बका, और मुझे ये बताएं, हम कब तक इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, तारीख की बेईमानी, मुतालिया पाकिस्तान को बहुत अच्छे तरीके से ठीक करने की जरूरत है। बहुत हो गया। अब आम एक छोटे छोटे बच्चे को भी पता है कि 47 से लेके आज तक इस मुल्क के साथ क्या हुआ है। मजीद हम ये मुल्क को बचा लें खुदारा,
बहुत हो गया, काफी हो गया हुआ है, अब बस ये निकल आए, ये उसको डराना धमकाना, कभी कॉल करना, कभी लेटर का आ जाना, कभी मतलब जो जिसका दायरा कार है उसके अंदर रह के काम करने की इजाजत दी जाए। अभी भी मुल्क ठीक हो सकता है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अगर हम होश के नाखून ले लें, अपनी अपनी ईगो को कम करें और ये जो शतरंज ना समझे 22 करोड़ गरीब आवाम को, ये जिंदा जीते जागते इंसान है, इनकी वजह से सबके कारोबार, सबकी रौनकें लगी हुई हैं, इस मुल्क को जिंदा आखिरी सांसों पे ले गए हैं, तो अब इसको बचाने का हल भी हमने निकालना है। हम ही में से लोगों ने दिल बड़ा करें, हौसला करें और अल्लाह पे छोड़ के सारे हम बैठेंगे तो मुल्क ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात। हम सारी बातें दिल से कुदरतें निकालें, देखें हम दिल से निकालेंगे तो आगे बढ़ेंगे। जी 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 सलमान आबिद साहब, बड़ी अच्छी बात है। अगर एक सियासतदान, एक जमात का नुमाइंदा ये कहता है कि हमें नफरतें भुलाकर मुल्क के लिए आगे बढ़ना चाहिए, तो आपके ख्याल में आप जितनी सियासी अदम इस्तेहकाम और जिस सिचुएशन पर इस वक्त मुल्क खड़ा है, इस सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है अगर तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर बैठ जाएं, एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात को सुने, मुल्क की खातिर आगे बढ़े? देखिए, जो बात अभी मुसरत चीमा कर रही हैं, सारे ये कहते हैं कि हम मुल्क की खातिर बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन बैठता कोई नहीं। प्रॉब्लम सारा ये है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो हमने एक फैशन बना लिया ना पॉलिटिकल एडवेंचर्स का और सियासी मुहिम जोई का, इससे हमें बाहर निकलना है। अब बुनियादी बात यह है कि जो निहाल हाशमी साहब कह रहे हैं कि सियासतदान मिलकर तय करें, कोई जुडिशरी का रोल नहीं है, कोई इस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं है, कोई प्रेसिडेंट का रोल नहीं है, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। लेकिन अब ये पूछा जाए ना कि मसला फिर क्या है, क्यों नहीं बैठ पा रहे आप, क्यों नहीं रिजॉल्व कर पा रहे इशूज़ को, क्यों नहीं एक दूसरे को तस्लीम कर रहे? अभी चंद माह पहले शहबाज शरीफ साहब ने तजवीज़ दी थी कौमी हुकूमत की और कहा कि इमरान खान को निकाल कर कौमी हुकूमत बना दी जाए, तो फिर कैसे मसला हल होगा? एक पार्टी को ही आप निकालना चाहते हैं बीच में से। प्रॉब्लम यह है कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने फ्रेमवर्क में जब चीज़ों को देखने की कोशिश करती है तो प्रॉब्लम आ जाता है। देखिए, पाकिस्तान के इस वक्त जो इंटरनल कॉन्टेक्स्ट हैं और जो एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट हैं, जो रीजनल कॉन्टेक्स्ट हैं, वो किसी किस्म की बड़ी महाजराई का पाकिस्तान अब मजीद मुतमईन नहीं हो सकता। पाकिस्तान को अगर आपने वे फॉरवर्ड में लेके जाना है तो आपको बैठना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है कि पार्लियामेंट में बैठ के डिस्कशन कर लें। अब पार्लियामेंट में तो पीटीआई है नहीं, जो डिस्कशन किससे करेंगे? और पार्लियामेंट के अंदर जो बाकी जमातें हैं उनका कितना इत्तेफाक है? आज तक कौन सा मसला हमने पार्लियामेंट के जरिए हल कर लिया है? सवाल ये है कि जो स्टेक होल्डर हैं वो सारे बैठ जाएं। अब मिसाल के तौर पे इन्होंने कहा जुडिशरी के बारे में, भाई जब सियासतदान सारी अपनी गेंदें जो है उठा उठा के जुडिशरी की तरफ फेंकेंगे तो फिर जुडिशरी भी तो कोई वे आउट निकालेगी ना। अब आप मुझे बताइए कि जो काम पार्लियामेंट को करना था, जो काम पंजाब असेंबली को करना था, वो हर दफा अदालतों में चले जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ जो है फिर हम कभी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। और मैं आपको निहाल हाशमी साहब को कई मिसालें बता सकता हूं कि जिसमें पीएमएलएन के लोग भी एस्टैब्लिशमेंट से मदद मांगते हुए नजर आ रहे हैं कि जी वो आए और आगे बैठ के रोल प्ले करने की कोशिश करें। तो जब आप ये सारे स्टेक होल्डर कह रहे हैं और जब एस्टैब्लिशमेंट कह रही है ब्रिगेडियर साहब के बकौल कि हम न्यूट्रल हैं, तो भाई आप बैठ जाएं। अब सदर मुमलिकत भी तो एक मेजर स्टेक होल्डर है ना, और चीफ जस्टिस साहब भी जो है वो किसी बांग्लादेश के चीफ जस्टिस तो नहीं है, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं भैया। अगर वो बैठ के कोई वे आउट निकाल के ये सारे स्टेक होल्डर बैठ जाएं और कोई रेजोल्यूशन निकाल लें, कोई एक फ्रेमवर्क बना लें, किसी एक फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए एक इस तरह का नक्शा बना लें कि जिसके जरिए हम वे फॉरवर्ड जा सकें। ये जो सियासी तलखियां हैं, ये जो हमने सियासी दुश्मनियों में डाल दी हैं, एक दूसरे के सियासी वजूद को कबूल ना करना, एक दूसरे को बर्दाश्त ना करना, एक दूसरे के साथ ना बैठना, तो इसको फिर कैसे खत्म करेंगे? कोई आपको आके बिठाएगा? अगर आप खुद नहीं बैठेंगे तो कोई और बिठा देगा। और जब आप बैठ जाएंगे सब बैठ के, तो कोई वे आउट तो निकालेंगे। आज इमरान खान जो डिमांड कर रहे हैं, अब जरूरी नहीं है उनकी हर डिमांड तस्लीम की जाएगी, लेकिन आप बैठेंगे तो बात होगी ना। अब वो नए इलेक्शन के ऊपर अगर बात हो रही है तो चलें आगे निकालें, कोई वे आउट वे फॉरवर्ड निकालें। क्योंकि देखिए बात ये है कि ये जो सारा रिजीम चेंज हुआ उसके बाद से तो सारी चीजें जो है तरतीब वाइज गलत साबित हो गई ना। हम तो चीजें ठीक करने की बजाय चीजों में बिगाड़ पैदा कर गए हैं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अब भी ये वक्त है कि बार बार एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देखने की बजाय हम सदर मुमलिकत की तरफ देखें। सदर मुमलिकत इनिशिएटिव ले लें, प्राइम मिनिस्टर इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर इनिशिएटिव ले लें, इत्तेहादी जमातें इनिशिएटिव ले लें, अपोजिशन इनिशिएटिव ले लें, कोई तो इनिशिएटिव लेना। लेकिन जब आप अभी लड़ेंगे, एक दूसरे से माजराई करेंगे, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो फिर इनिशिएटिव जो है वो बाहर से आएगा, वो चाहे आपको पसंद हो या ना हो। इसलिए ओनली वे आउट ये है कि इस वक्त एक रेजोल्यूशन की तरफ जाएगा। ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। निहाल हाशमी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। जिस तरह आप बात भी कर रहे थे कि ये आईनी इख्तियार नहीं है इदारों के पास, जब हमने अदलिया की भी बात की एक मेज़ पर बैठने की, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं, वो कौन सा तरीक़ाकार होना चाहिए जिस पर तमाम सियासी जमातें एक मेज़ पर बैठें और आगे बढ़ने की बात करें? देखिए, इसमें आपको याद होगा कि 2006 और 2007 में
मोहतरम नवाज शरीफ साहब और मोहतरमा बेनज़ीर साहब और दीगर तमाम सियासी जमातें बैठी। मैं उसमें था, वो जो लंदन में हुआ था, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। जी, एक आज ये नहीं कि हम सियासतदान अहल नहीं है। आज से 15 साल पहले हमने ये डिसाइड किया था कि हमारे मुल्क का वे फॉरवर्ड क्या होगा, मगर हुआ क्या फिर? वो हुआ क्या कि जब नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस सियासत में इंटरफेयर करती हों और हमारे लोगों में वो तफरका डाल रही होती हैं और हमारे दरमियान ऐसे लोग लेके आ जाए। 2018 में क्या हुआ? अगर आरटीएस को ना बैठाया जाता, अगर 2014 में धरना देने के लिए वो इमरान को सपोर्ट ना किया जाता, अगर चाइनीज प्रेसिडेंट को आने से ना रोका जाता, पाकिस्तान स्मूथली टेक ऑफ कर रहा था। 1990 में भी जब टेक ऑफ कर रहा था, 1999 में भी जब कर रहा था और 2013 से जब टेक ऑफ कर रहा, तो एक नया पैनामा है। पैनामा में 452 लोग थे। कितने लोगों के ऊपर ट्रायल हुआ? सिर्फ एक नवाज शरीफ। और एक पैसे की कोई धांधली नहीं निकल सकी कि जी उनके बेटे ने से उन्होंने तनख्वाह नहीं ली। और फिर उसमें क्या हुआ? जजेस, निगरान जजेस कायम कर दिए गए और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया साकिर निसार साहब ने कि इसके ऊपर 3 एनआरओ कायम कर दिया, मैंने वो कर दें, आप केस का नैब के केस कायम करें। तो हम तो कोशिश करते रहे। शहबाज शरीफ साहब ने भी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के हवाले से इमरान खान साहब को ऑफर किया। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कदम अब क्या ऑफर करेंगे आप? हमारे साथ है। जी जी, अब क्या ऑफर करेंगे आप? कोई आदमी गैर सियासी फोर्सेज, इमरान खान एक गैर सियासी आदमी है। उनके अंदर जिस आदमी के अंदर सब्र ना हो, इस्तेकामत ना हो, बदतमीजी करते हो, गुंडागर्दी करते हो। लाहौर में उन्होंने जी जी, मैं चाहती हूँ कि हम इस फोरम पर एटलीस्ट ये डिसाइड करें कि आप मुल्क की खातिर क्या एफर्ट कर सकते हैं बतौर जमात। अगर आप एक दूसरे पर इसी तरह से बात करते रहेंगे, बड़ी सियासी जमात तैयार है, उनके चेयरमैन ही गैर सियासी। अगर एफर्ट नहीं करना होता तो हम अपनी सियासत को तबाह करके पाकिस्तान को इस्तेकाम देने के लिए हुकूमत ना लेते। हमारी सियासत को नुकसान पहुंचा, ब्रिगेडियर साहब क्विकली करने आए थे। हमें पता था कि हमारे जिसमें बात ये है कि मैं कह रहा हूँ कि अभी आगे पुराना पीछा छोड़ दें, खड़े रहेंगे, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आगे देखें कि मुल्क जिस कंडीशन में एनवायरनमेंट में जा रहा है, क्या हमने इसको और दूर करना है या इसको बचाना है? इसको बचाने के लिए सबसे बड़ा फोरम है कि पॉलिटिकल पार्टीज नेशनल डायलॉग कर लें, हुकूमत चाहे इनवाइट करे, चाहे इमरान खान साहब चाहे फॉरवर्ड लें, मुल्क के लिए डिसाइड करें। हाँ जी, अर्ली इलेक्शन और 1 2 3 4 5 चीजें डिस्कस कर लें। अगर ये नहीं होता देन आई थिंक प्रेसिडेंट या चीफ जस्टिस हैव टू इंश्योर। मुशर्रफ साहिबा क्विकली आपसे भी यही मेरा लास्ट कमेंट कि क्या आप क्या एडवाइस करेंगे, क्या फोरम होना चाहिए जिस पर आप सब मिलकर बैठें, मुल्क का सोचें? देखिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस वक्त बहुत ज़रूरी है और हमारे लिए वही वेंटिलेटर हो साबित होगा। और उसके लिए ये है कि तमाम स्टेक होल्डर बैठें और अर्ली एज पॉसिबल इलेक्शन हम कॉल करें और उसमें सारे मिल के टर्म्स एंड कंडीशंस तय कर लें। इसमें मुश्किल क्या है? ये नहीं एल्फी लगा के ज़बरदस्ती माइनॉरिटी में होते हुए कुर्सी के साथ चिपके रहना और फिर इनसे क्या डायलॉग करना कि जिसमें सबसे बड़ी सियासी जमात जिसकी 2 सूबों में अक्सरियत है, 4 सूबों में उसकी माशाल्लाह से हुकूमत है और जिनकी किसी सूबे में भी। ठीक है मुशर्रफ साहब, माजरत के साथ मेरा खत्म हो गया। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।